أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية صدق الله العظيم. Jazakallah, Hamid Saab. Very beautiful recitation. I request Madam Tahsin to give introduction of your school, Madam, your institutions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum salam. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Myself, Tahsin Sakina, the academic director for Ahad Group of Schools. I'm really honored to have all the dignitaries here giving the motivational speech to all our students, mainly on awareness of civil services among students of minority community especially. A great honor, sir, to be with you all, and may Allah reward you all for these efforts. May our students come out in this field, I feel, which is the need of the hour, I feel. Most of the students don't get into this civil services mainly. So it's really a good initiative. So I thank you all for that. Jazakallahu khairan kasira. And our schools are mainly placed in Hyderabad, sir. One is the Ahad High School, which has completed 25 years, and with a strength of 1,200 students approximately. And the Ahad Techno School was started 7 years back with an mainly the motive behind this was to give the best education to the students of Tapachaputra area. We belong to Tapachaputra area. So we have students, mainly the community which needs a lot of awareness about education, I feel, especially. So it comes under the old city. So our motive was mainly to give them the activity-based student-centric approach, education mainly with hands-on experience for the students of that locality mainly, so that they will not go to far-off places of other community, I feel, where they were not exposed to our Islamic culture. So in our all schools, we follow Understand Quran Academy course right from nursery onwards, and Hamid sir is one of the faculty member of one of our schools. So Alhamdulillah, from nursery itself, the students learn with Tajweed,
and it's a word-to-word translation in English and Urdu. So Alhamdulillah, we have started that course nearly 5 years back in the Ahad High School and other two schools also. And we focus mainly on sports also, schools. And the Ahad Techno School, now the strength is nearly 400, Alhamdulillah. 5 years back, we started it. And XLH, the Value School, is located in Shastripuram, King's Colony. So this school was started 3 years back. This is the 4th year, and the approach is different. And we focus on mainly each child development here. And being from the education field, I myself have completed and I worked with the Learning Links Foundation and Educom Solutions as a teacher's trainer. So Alhamdulillah, we are doing well, and we expose our children to different fields, sir. And exposure is given in Sirat also, quizzes conducted, and all the any courses about Diniyat and Islamic subjects. Definitely, we expose our students. And I feel the need, like IS and IPS. Even I was looking for somebody to guide us on this, and to our students and parents also. So Alhamdulillah, if your recording is shared, inshallah in future we may conduct our parents orientation on this mainly for high school students, so that the parents will be aware of it. And today I'm really sorry to see that most of them have not joined yet. So maybe they'll be joining after Salah and it's a Salah time. Inshallah, sir. And Jazakallah khairan kasira, sir, for all this thing. And I really thank Bashir, sir, mainly to coordinate with us and organize this. So, inshallah, about the course and all, there are all dignitaries and speakers are there. I'm really thankful to all the speakers who have joined and taken out your precious time for us. So, inshallah, may Allah guide us all to achieve what is your initiative and our future generations. Jazakallah, sir. Thank you, madam. Thank you very much, madam. Myself, Muhammad Saiduddin. I'm electrical engineer. Myself and other speakers, all of us are joining from Jeddah, Saudi Arabia. And it is our honor, and we are very much passionate to give awareness to our children, make them aware of because generally, our children are only going to one direction, either engineer or doctor. We have created this Civil Services Academy to make Civil Services Academy as a sought after profession among our community. We want this seminar today should change lives of our children. We are going to give such ideas and tips. If they follow, it will change. They will be a different person from tomorrow. Generally, most of our youth are in society are inclined to engineering and medicine after their intermediate. This trend we have to change and make civil services as a sought after profession. Those who are appearing for UPSC exam are selected for the positions of IAS, IPS, and IFS, Indian Administrative Service, Indian Police Service, and Indian Foreign Service, and other 19 allied services. All these services in the government form the bureaucracy, and they in reality rule the nation. So because of that, we want our children to go to the highest positions so that they get involved in the nation building of our country. So here actually, the point is our children should know we are encouraging them to go for competitive exams. Our main focus is, we are not participating in competitive exam, which is a shortcut to progress. So our aim is, we are going to give them 3 levels of exams actually. There are some exams which are to be done before intermediate, and there are some exams after intermediate, and there are exams after graduation. And this civil services is an exam which qualifies people after graduation. So we would like the management and the students to be aware that what exam they have to do during the school years before the intermediate. This will, we should identify the exams and prepare the students for that. Once children are used to participate in competitive exams, they will be ready for UPSC exam also. Very easy for them. So to start our program today, I would request Engineer Nasir Khurshid, who is a very senior engineer working in Saudi Arabia for several years. He's a very prominent community member in Jeddah, and I would request him to give his motivational talk, please. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. शुक्रिया सईद साहब, खदीर साहब और डिग्नेटरीज
आप तमाम का मैं बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ जो आज आप तमाम ने मौका दिया। और प्यारे बच्चों, आप तमाम को सलाम अर्ज है और मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ है। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट इन फॉर योर कमिंग एंडेवर्स। जैसा एक शेर है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। मैं सबसे पहले बच्चों से पूछना चाहूंगा, लेट मी आस्क ऑल ऑफ यू, कि आप लोगों में से कितने लोग अपना कैरियर बेहतर बनाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से सभी बच्चों का यही जवाब होगा, क्योंकि यू आर वन ऑफ all those students. I think there are thousands of students of your age level, but they are in comfort zone, जिनको नहीं चाहिए, जिनको फिक्र नहीं है कि आगे क्या किया जाए। आप लोग स्पेशल हैं, you already decided, नहीं हमारा फ्यूचर हमको बनाना है, तो इसके लिए हमको इस तरीके के सेशंस ज्वाइन करना है। हमको जो है बेकार किस्म के वो चैट्स में या आराम करने में टाइम गंवाना नहीं है, क्योंकि आपका जो अभी ये एज ग्रुप है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको यू हैव टू डिसाइड नाउ और नेवर। यू एटलीस्ट ये सोच लीजिए कि कैरियर बनाना है या नहीं बनाना है। तो अगर नहीं बनाना है तो फिर जो चाहे आप करते रहिए, लेकिन बाद में जो आपके आने वाले कैरियर है उसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये यानी कि आपकी जिंदगी अजीरन बन जाएगी, एक एक पल जो है गुजारना मुश्किल हो जाएगा अगर आप इन दिनों में मेहनत करेंगे। अभी यहाँ पर मैं, चूंकि मैं यूपीएससी, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या इस किस्म की कोई बात नहीं कर रहा, मैं आपको जनरली फोकस ये कर रहा हूँ कि आपकी जो अभी एज ग्रुप है, जिस क्लास में आप हैं, यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, आपको कुरान, नमाज, एक्सरसाइज, बाकी कुछ चीजें जो जरूरी हैं वो ये है, लेकिन इसके अलावा आपको किसी किस्म का टाइम यहाँ पर गंवाना नहीं है, क्योंकि जितना टाइम आप पढ़ाई में देंगे और जितनी आपकी पढ़ाई बेहतर होगी, आपका लेवल ये होगा। जैसे कि अभी आपको बताएंगे यूपीएससी वगैरह का जो है, वो चीजों में अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको यहाँ से तैयार होना जरूरी है। तो जितना मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। और इंशाल्लाह आज आप हमको यहाँ सुन रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि जब आप टेलीविजन के जरिए बोलेंगे और हम बैठकर सुनेंगे, क्योंकि ये मौका आपके हाथ में है। अब अगर मैं चाहूं तो मेरे हाथ में मौका नहीं है। आप नो, यू हैव टू डिसाइड कि आपको नहीं, ये मौके को गंवाना नहीं है और इसको हमको किसी तरह से हासिल करना है। ये बात आप लोग डिसाइड कर लीजिए और हमेशा क्लास में यानी आपका कंसंट्रेशन मुकम्मल तौर पर लेक्चर्स की तरफ हो, और आप घर में जब पढ़ेंगे, व्हेनेवर यू स्टडी, उसकी तरफ पूरी तरह कंसंट्रेशन के साथ समझ कर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और बच्चे अगर कोई मेरे ख्याल से अगर अक्सर बच्चों में पूछे तो बताते हैं कि भाई नहीं, हम तो मेडिसिन जाने वाले हैं, तो लिहाजा मैथमेटिक्स को हम जो है अवॉइड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है मेरी नज़र में। अगर आपको ये आगे बढ़ना है तो एक एफिशिएंसी आपकी बढ़ाता है दिमाग की। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एनहांस करता है ज्यादा सोच की तरफ। तो हमेशा मैथमेटिक्स की तरफ ज्यादा तवज्जो दीजिए। ये नहीं कि ये सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, ये इसकी बात नहीं है। तो मेरा कहना है कि क्योंकि मैं एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में मुझे ये बताना था कि आप लोगों को पढ़ाई किस तरीके से करना है, और आपको जहन में ये बात रखना है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो एक तो आपका अपना कैरियर संवरेगा, आपकी एक लग्जरियस लाइफ आपके सामने है। जो लोग मेहनत नहीं करेंगे, जो बाद में स्ट्रगल करना है, आप तो देखे होंगे कि भाई कोई बहुत तकलीफ में लोग, कोई मजदूरी भी करते हैं, कोई ऑटो चलाते हैं, कोई रिक्शा चलाते हैं, ऐसे भी गुजर जाती है जिंदगी। लेकिन जो पढ़ लिख कर जो तालीम को अपना हथियार बनाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन हासिल करते हैं, वो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते हैं। आपने कई मिसालें ऐसी आज देखी हैं। तो आपके लिए ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ अहमियत देने के लिए मैं आज बात कर रहा था। तो और एक बात मैं बता रहा था, एक तो आपकी जिंदगी बेहतर होगी, दूसरा मुल्क और कौम के लिए आप कुछ काम कर सकते हैं। जैसे सईदुद्दीन साहब हैं, खदीर साहब हैं, मिर्जा कुदरत साहब हैं, और जो लोग यहाँ पर, मैडम तहसीन है, ये जो है ये क्यों यहाँ पर हैं, सब इसलिए है कि ये हमारी कौम आगे बढ़े। तो आगे जब आपके हाथ में भी एजुकेशन आएगा,
आपके हाथ में वो कुव्वत होगी तो और लोग कौम का काम करेंगे, मुल्क का काम करेंगे। ये प्यारा मुल्क हमारा, इसको संवारना हमारी जिम्मेदारी है। तो लिहाजा ये जो है आपको समझने की जरूरत है कि क्या आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए या एम्पावरमेंट। एम्प्लॉयमेंट यानी एक छोटी सी कोई नौकरी कर लो कि भाई उनके पास जो भी बॉस कह रहा है उसके तहत आप काम करेंगे, जो पैसे मिलेंगे जेब में डालो, जो भी खर्चा है ये। लेकिन एम्पावरमेंट उस वक्त मिलती है कि आप और लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं। जैसे कि यूपीएससी की है कि कमिश्नर की पोजीशन ऐसी है जिसके अंदर एक बहुत बड़ी टीम काम करती है। तो यानी आपके जरिए से जो है अपने पावर को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये चीज को हमको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। और मैं इसलिए खुश हूं कि आप लोगों ने वक्त निकाला और आप लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमें कंफर्ट जोन में रहना नहीं है, हमें आराम की जरूरत नहीं है, हमको आज स्ट्रगल करना है। तो अगर हम स्ट्रगल करेंगे तो हम टॉपर्स में रहेंगे और हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे वो हम जो है इसके कामयाब हो सकेंगे। तो इस किस्म की चीजें जो आप लोगों में आई हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल देता हूं मैं। एक अफजलपुर एक छोटा सा कस्बा है गुलबर्गा का के करीब में, वहां पर एक बच्ची जिनके घर में एक कमरे का घर है, वो बिल्कुल लकड़ी का चूल्हा उनके पास है, और वो लड़की ने सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ एक कमरा एक बल्ब उनके घर में है। तो आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर मुश्किलात से वहां पर वो बच्ची तालीम हासिल की होगी। 98% हासिल की है वो बच्ची जो है 10th के एग्जाम में। तो ये एक देखिए ये बहुत मेहनत, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको कोई कामयाबी इसकी तरफ बढ़ने से नहीं रोक सकता। तो यानी ये सिर्फ मेरा ये कहना है कि जितना भी आपको फोकस करना है वो अपनी पढ़ाई की तरफ करना है, क्योंकि अब आज आपके सामने कई फंक्शंस आएंगे, शादियां हैं किसी के रिश्तेदारों में, ठीक है आप थोड़ी देर के लिए रह जाएं, अटेंड करें, आ जाएं और फिर अपने पढ़ाई पर फोकस करें। क्योंकि मैं देखा अक्सर बच्चे काफी लंबा टाइम जो है इसमें स्पेंड करते हैं और उस वजह से बाद में फिर जब एन एग्जाम के वक्त जो परेशानी उठानी पड़ती है। एक और अहम बात मैं बताना चाहूंगा, आज आप जिस क्लास में भी हैं तो हमेशा आज आप लेक्चर्स अटेंड कर कर जब घर आते हैं तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आज जो मैं क्लास में लेक्चर्स हुए हैं उसका कल एग्जाम है। तो उस तरीके से आप उसको इमीडिएटली फोकस करके उसकी स्टडी करना है। आपको उसके लिए क्या क्या तैयारी करना है मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज हर दिन का अगर आप उसकी तैयारी को उस वक्त आप ग्रास्प करके उसको ये करेंगे तो आपको जब एग्जाम के सामने जब रिवीजन की बात आती है तो ज्यादा आपको मुश्किलात नहीं होती। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एवरी डे और एवरी वीकली बेसिस आप ये समझें कि संडे आ रहा तो संडे के दिन मेरा एग्जामिनेशन है पूरे सब्जेक्ट का, तो मुझे पूरे एक हफ्ते का रिवीजन करना है। तो देखिए इस तरीके से पढ़ने से ही आपको आगे बेहतर स्कोरिंग कर सकते हैं और आप उसके लिए तैयार हो सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार होना आसान नहीं है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। एक और बात मैं बताता चलूं कि हर बच्चे से आज जितने भी आज यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि एवरी डे कम से कम आधा घंटा आप इंग्लिश न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, चाहे उर्दू भी पढ़ सकते हैं, उर्दू इंग्लिश, क्योंकि करंट अफेयर्स की तरफ आपको ये होना जरूरी है। मैं एक और बात बताता चलूं, क्योंकि जो मैं प्रैक्टिस जब मैं शुरू किया था मुझे भी इसी तरह के हमारे खैर खां ने बताया था कि अखबार पढ़ना चाहिए। तो जब शुरुआत में जब मैं पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये एक बहुत ही बोरिंग चीज है ये तो, लेकिन जब एक हफ्ता 2 हफ्ते जब उसको मैं मुसलसिल पढ़ता रहा तो मेरा उसका इंटरेस्ट की तरफ बढ़ता रहा और मैं रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और आज भी पढ़ता हूँ। तो आप लोगों से मैं ये करूंगा कि ये प्रैक्टिस आप अपने जिंदगी में शामिल करें। मेरे ख्याल से बहुत शुक्रिया मुझे जो टाइम दिया गया था। इंशाल्लाह अगले सेशंस में हम और बातें करेंगे। सईद साहब बहुत शुक्रिया, खदीर साहब प्लीज, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। Nasir Saab, thank you very much. It was excellent advice to the children. What I'm saying now is, so that, we can know the features, we can know expressions of their faces and we can know how they are taking the class, how they are observing the information being given to them. We can ask, their feedback, how they are feeling. They can give, when they like something, they should raise their hand and say, yes, this is a good point, they listened, like that. I request now Mr. Khadir Saab. Abdul Khadir Saab is a National Country Manager here,
country sales manager in Beljagar company. He's one of the most prominent company here, and he's very busy person. Mashallah, in spite of that, he gives a lot of time to the community affairs, and especially he's very much passionate to give awareness to the children. He has come here to give the full lecture of today, and I request Khadir Sahab to present his lecture. Thank you very much. Thank you, Saeed Sahab. Jazakallah khair. Let me just first start sharing my screen. So, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. As-salatu was-salamu ala rasulihil kareem, amma ba'd. First of all, I would like to thank Ahad Group of Institution, if I call it properly, because there are so many institutions in it. The management and students, I welcome you. It is a really great pleasure to be with you all today to share our good thoughts, to educate you on some important aspects in life. So I don't know whether it is English is okay or I should speak in Urdu. They are comfortable with English. Okay, that's fine. Jazakallah khair. Anyway, now this Civil Services Academy, you have already heard about it, why we have formed this and why we are trying to give this kind of webinar lectures and why we want to motivate our youth. So this is to create awareness and to motivate the youth for civil services exams mainly. That is the mainly I'm talking about. The second thing is I will be talking today in the next 35 to 40 minutes. I want the students to pay attention. If they have the pen and paper, they can write down the important points which I will be sharing with them. Okay. So at the start of it, I would like to just quote one good phrase which Nasir Naveed Sahab, Nasir Khurshid Sahab has just quoted. You all want employment or empowerment. So think about it. That's a very good thing he gave, employment or empowerment. If you are employed, you'll be working for somebody and with a low salary, you're working hard whole life. And empowerment, you will be leading, you will be a deciding personality, you will be having a top position in your life. So it all differs. Okay, just to start with now, let me just tell you all that Allah subhanahu wa ta'ala has made us human being. So everybody knows that human being has Ashraful Makhluqat, has all the good qualities in us. So Allah gave us the ability to think, to communicate, to talk, to analyze things. So we should be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ. So he has made us in a best form. Alhamdulillah. Okay. So now next thing I'd like to tell you all is importance of education, students. What I do here, I'll take you all through importance of education, importance of time, importance of personal management, importance of your goal setting. Then I'll take you through the UPSC exam, what it is, how you need to carve your life, how you need to shape up your life, how you need to spend your time, how you need to pursue your education to goal setting, everything. Okay. So in the Quran, everybody knows that the first word revealed of Quran was Iqra. Iqra means read, seek knowledge, educate yourself, be educated. Allah subhanahu wa ta'ala, students, he has sent first wahi to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. In that wahi, Allah subhanahu wa ta'ala did not tell us that Iman, Rasul, Zakat, Hajj, Roza, Khairat, ये सब चीजें अल्लाह ने नहीं कहा. अल्लाह ने पहले कहा इक़रा, read, means Allah subhanahu wa ta'ala is also giving a lot of importance to education. So with this you understand the importance of education. So Rasulullah says seeking knowledge is an obligation upon every Muslim, every human being. So with this you just keep it in your mind, students, that what we need to do, we need to acquire knowledge. It's a process, it's ever ending. From a child till a birth, we will be learning, we will be educating ourselves. Okay, that's important thing. He who follows a path in quest of knowledge gain करने की रास्ते में जब हम चल पड़ते हैं, Allah will make the path of the paradise easy for us. ये तिरमिज़ी की ये हदीस है कि हम knowledge हासिल करने जाएंगे, अल्लाह हमको जन्नत के जो है रास्ते में हमवार करेगा. ठीक है ना? तो इसी तरह से education is not only the right but the duty of every Muslim. ठीक है ना? Male or female. I can understand that there are more girls students are sitting here. Alhamdulillah.
and girls students are the maker of the societies. So you have got that privilege as girls, okay, to shape up your community, shape up your family. So you have more responsibility, girls, if you're listening to me. So you are lucky, mashallah, okay. So the best gift from a parent to his child is education. So if the parents are listening here to me today, now they need to understand what the best gift they can give it to your children, which is education, mashallah, okay. So yet, sorry to say, the Muslims have the highest number of illiteracy. Nearly 43% of our population students, they are illiterate. Why? Why? Because we don't understand the importance of education. We don't pay attention. We don't utilize our time. We don't have proper goal setting. That's why we are going in aimless direction. We don't have any direction in our life. That's why we are studying, we are quitting our schools, the school dropouts in 8th standard, 10th standard, 12th standard. So we are not paying attention. That's why we have 43% illiteracy in our community. Okay. So today, now you understood the importance of education. Just keep it in your mind, follow the path. Okay, please. Now, second thing Allah subhanahu wa ta'ala gave us is the time, mashallah. The time, everybody has got 24 hours, students. What we need to do? We need to utilize our time properly. Okay. Then how you'll utilize our time properly? You need to eliminate from your life all the time wasters. What waste your time? Your mobile phones, your friends who doesn't have any study to have valuable thing in life, your social obligations. You have one small party, you have one small marriage, you'll go and spend 6 hours, 8 hours. It's a crime to waste 8 hours. You've got 24 hours. Okay. What you need to do is in 24 hours, you sleep for 6 to 8 hours. Okay. You have your personal things 1 or 2 hours. Then what you're getting remaining is around 14 hours. Okay. In 14, 12 hours, students, you can utilize these 12, 14 hours in a very, very nice manner where you can concentrate on so many things, important aspects of your life to make you a good human being, to make you educated, to make you achieve your goals. Okay. So now at the last thing you can see here, the element of time management. Okay. What you can do is list out the tasks to be done on a paper on a daily basis. Like you can note down your important things of the day. Okay, priority wise, first important, secondary important, then third one. Okay, that way you can complete it. Set priorities in them, the 3 level of importance. Okay, then complete first most important one, then lesser important, and the least important. That way what will happen, your 24-hour students will be spent in a most efficient and productive manner. Okay, that's the best thing. So you can understand all the important eminent personalities you can come across, leaders, philosophers. You read their life biography, you can understand they spent their life in a very efficient manner. That's why they could achieve it very easily. Whatever they wanted in life, they achieved. Why we are not able to achieve? Because we don't know how to spend our time, how to utilize our time properly, how to prioritize our things. Okay, that's the important thing. Now, that's why I'm saying here now that every person has 24 hours in a day, but you see some become millionaires, some become very high, big leaders, big eminent personalities, philosophers, scientists, and some remain beggar. Why? Because they don't pay attention when we are talking to them. Why I'm telling you students these all, now you are in a high school, mashallah. You are at a very right crossroad. You have not lost any time in your life, mashallah. See me, Nasir Saab, Saeed Saab, or your school management who have crossed 40, 45, 50 years, we don't have that much time with us now. We have studied, we are busy in other practical fields in our lives. But you, mashallah, you are a student. Still, you have time at this crossroads, students. You spend your time properly. What we are educating to you all today, please understand. We have a concern with our community. Why we are come here to speak to you, to make you understand. Please pay attention to whatever we are saying today. Make your life, make your akhirah, make your life beautiful with your fellow students, with your teachers, with your guardians, with your parents, most importantly. Okay? So spend time properly so that you don't waste your time. You pay attention to all the important aspects of your life. Okay? So now they see these Bill Gates, one of the richest person on earth, said, if you are born poor, it is not your fault. But if you die poor, it is your fault. Now with this, what I can understand, student, is
so many people are there. हम भी सादे सीधे घर के हैं, मिडिल क्लास फैमिली के हैं, आप लोग भी जो मिडिल क्लास फैमिली के होंगे बात अच्छे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सोचें कि आपके पेरेंट्स बच्चों जो मेहनत करके जो पैसे कमा रहे हैं आपके लिए डाल रहे हैं, स्कूल वाले आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और आप लकी हैं जो एसोसिएटेड विद ahad group of institutions. They are very dedicated people. They are trying to educate you, give you good knowledge, education. ठीक है? तो अब आपका काम क्या है कि ओबीडियंट बने अपने पेरेंट्स के, अपने टीचर्स के, अपने गार्डियंस के, रेस्पेक्ट करें बड़ों के, छोटों के। आप अपनी लाइफ ब्यूटीफुल बना सकते हैं बच्चों। बहुत सिंपल है ये इट्स नॉट अ बिग रॉकेट साइंस। आज अगर आप सोचें कि मेरी लाइफ कल से इस तरह की अच्छी होनी चाहिए, जैसे अब्दुल खदीर ने कह रहे हैं, या सईद साहब ने कहा, या नासिर खुर्शीद ने कहा, या आपके मैडम ने कहा, तो आप सोचें, सीरियस बने, आपकी लाइफ सही रास्ते पे जाएगी। आपको कोई मुश्किल नहीं है। इट्स ब्यूटीफुल लाइफ, आई एम टेलिंग यू, यू कैन मेक इट मोर ब्यूटीफुल। ओके, छोटे मोटे चीजों में आप नहीं दाखिल हों, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करें। जैसे मैं कहा पहले भी कि एलिमिनेट कर दें जो टाइम वेस्टर्स हैं आपकी लाइफ से। ठीक है, बाज आपके फ्रेंड्स हैं, आपके मोबाइल्स हैं, गैजेट्स हैं, लैपटॉप हैं, ब्राउजिंग है, गाने सुनना, फला करना, चैटिंग करना, सब छोड़ दें, ये काम आने वाले नहीं है। यूटिलाइज योर टाइम एफिशिएंटली। ओके, राइट। Now, after time, first education importance I gave you, time importance. Now, have your goal. You need to have a goal setting in life. What you want to become. You cannot just pursue your life, continue your life without any goal. You will reach nowhere. Okay? तो क्या करेंगे? Another important element of for success is to have a clear goal. Clear आपका एक गोल होना चाहिए, आपका एक टारगेट होना चाहिए लाइफ में। ठीक है? The goal should be smart. स्मार्ट क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ये आप थोड़ा सा ब्राउज करके देख लें, whatever is there on your Google and all, because the time constraint I cannot elaborate explain this thing in a डेप्थ मैनर। ठीक है, आप देख लें इसको। स्पेसिफिक मैं आपको थोड़ा सा कह दूंगा, बहुत मुख्तसर हो। ऐसा नहीं है कि आप गोल बना रहे हैं कि मैं 10 चीजें 50 चीजें एक दिन में कर लूंगा या कर लूंगी, ऐसा नहीं होगा। आप स्पेसिफिक रहें कि आपको क्या अचीव करना है, वो मेजरेबल रहे, उसको कैसे आप उसको करेंगे, उसको आप इवैल्यूएट करें, और अचीवेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप सोचें कि मैं जो है 2 मिनट में 4 मीनार के ऊपर चढ़ जाऊंगी या चढ़ जाऊंगा, ऐसा नहीं। आप अपना गोल बनाएं। ठीक है ना? अब जो माउंट एवरेस्ट पे भी लोग चढ़ते हैं, उनका एक गोल बनता है। दे ट्राई, दे प्रैक्टिस, दे मेक देयर बॉडी स्ट्रॉन्ग, हेल्थी, they learn so many techniques, oxygen level, this one, that one, then they reach. Okay, so that achievable should be, in a good manner. What I am saying is, for achievable you need to have all the building blocks, how you can achieve that. Then realistic होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ बैठ के मैं दूसरे दिन जो है अमेरिका में पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है ना? और टाइम बाउंड होना चाहिए। मेक ऑलवेज टाइम बाउंड, विद इन दिस टाइम आई वांट टू डू दिस task. Okay, so that's the important thing. So generally people fail by not setting a goal and drift in life and achieve nothing absolutely. So what you understand here is goal setting is very important in life. Okay, it will give you right direction, it will give you a very calm path. You won't be deviated. You will be always having one thing in your mind, I have to achieve this, I have to achieve this, I am doing this. That way the goal setting helps you, please. Okay, now what is your goal? How do you want to use your 24 hours? That should be, you're at the beginning of your career, as I said, you're in high school, mashallah, you have ample time. You complete your high school, you complete your intermediate 2 years, 11th and 12th, then you have graduation. Then after graduation you have whatever you want to do, UPSC exam, or mostly what people do is, if you ask any student, they say, no, we want to become engineer, doctor, fala. Everybody wants to become engineer or doctor. No, this is beyond that. We are talking to you. It's the highest level of exam we are talking to you now. Okay, after a few minutes now you'll come to know what is UPSC exam. I'll take you through, inshallah. So what you want to become, you have to decide now. The decision is yours. Okay, bacho, we are here trying to show you the way how you can reach the top position through UPSC, Union Public Service Commission. आपको ये नया लग रहा होगा कि भाई सर ये क्या कह रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वी नेवर हर्ड, और इवन इफ यू हर्ड आल्सो वी डोंट नो, इट मस्ट बी नॉन अचीवेबल, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इम्पॉसिबल है, बहुत कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ये सब मिथ है। हम आपको बताएंगे किस तरह से आप उसको क्लियर करके अपने गोल सेटिंग करके आप वो लेवल तक पहुंच पाएंगे। ओके, सो हाउ यू कैन सर्व आवर नेशन एंड कम्युनिटी, वो हम आपको बताएंगे किस तरह से होगा। ठीक है,
अब ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि समंदर तो सबके लिए एक ही है। समंदर से थोड़े लोग जो है सम टेक पर्ल्स, सम टेक फिश, सम कम आउट जस्ट विद वेट लेग्स। तो इसके माने क्या है, समंदर हर एक को उतना ही मिल रहा है जैसा टाइम जितना मिल रहा था, ठीक है ना। समंदर में बाज लोग अंदर जाके पर्ल्स लेके आते हैं, वो बहुत ही प्रेशियस होता है, वो पैसे वैल्यूएबल होता है, वो रिच होते हैं। फिर फिश लेते हैं थोड़े लोग सिर्फ जाके अपने पैर को जो है वेट करके आ जाते हैं। मतलब आपका अपना जो इंटरेस्ट रहेगा उस हिसाब से आप जैसे समंदर से ले रहे हैं, इस दुनिया से, इस टाइम से भी बच्चों उसी तरह से चीजें आप बेनिफिट रीप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं बताया कि टाइम सही स्पेंड करेंगे तो आप बहुत सारा चीजें वैल्यूएबल दुनिया से आप ले पाएंगे, ठीक है। लाइफ इज कॉमन फॉर ऑल बट वी गेट व्हाट वी ट्राई फॉर। ये इंपॉर्टेंट है, जहन में रखें, वी गेट व्हाट वी ट्राई फॉर। इफ यू डोंट ट्राई यू वोंट गेट। अल्लाह सुब्हाना ताला, देखिए मैं बताता हूँ आपको भी, यहाँ देखिए आप क्या कह रहा है अल्लाह ताला, बिस्मिल्लाह, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। Indeed, Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves. कुरान करीम की आयत है। इससे क्या मालूम हो रहा है कि अल्लाह भी उन्हीं की मदद करेगा जो अपने आप मदद करना चाहे। जो कौम अपना चेंज नहीं करेगी, अल्लाह भी चेंज नहीं करेगा। तो आपको भी क्या करना है, अपने आप को चेंज करना है। और चेंज इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बगैर चेंज के कुछ होने वाला नहीं है। आपका जो माइंडसेट अभी है, जहन में है कि भाई हम थोड़ा पढ़ लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, छोटी नौकरी मिल जाएगी, या कुछ और कर लेंगे, या कुछ टेक्निकल कर लेंगे, ये जहन से निकालें, अपने आप को चेंज करें। आप हाई सोचें, ठीक है। हम आपको बताएंगे किस तरह से सोचना है। अभी ये आपको दे रहा हूं मैं, थोड़े से मोटिवेशनल कोट्स दे रहा हूँ, सो दैट यू नो आपको थोड़ा सा माइंड में आएगा। इफ यू वांट टू लिव ए हैप्पी लाइफ, टाइड टू ए गोल, नॉट टू ए पीपल और ऑब्जेक्ट्स। जैसा अब मैं थोड़ी देर पहले कहा आपसे, इफ द प्लान डज नॉट वर्क, चेंज द प्लान बट नेवर चेंज योर गोल। तो गोल सेटिंग पहले कर लें आप, अपने पेरेंट्स से मिलकर, गार्डियन से, स्कूल के मैनेजमेंट से मिलकर आप अपना पहले गोल सेटिंग करें। देखें मेरा इंटरेस्ट, टीचर सर या मेरे मामा पापा, ये मेरा इंटरेस्ट है, मैं ये करना चाह रहा हूँ या करने चाह रही हूँ, मुझे मदद करें। वो लोग आपको गाइड करें, उसके बाद गोल सेट करके आप उसके आगे बढ़ें, ठीक है। फिर ये बता रहा हूँ कि शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। आप हाई सोचे, हाई आगे जाने की कोशिश करें, वहां से गिरेंगे तो कम से कम चांद को जाने की कोशिश करेंगे तो कम से कम आप स्टार में तो फंसेंगे आके, ठीक है ना। तो ये सोचें आप, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। बच्चों, क्रिएट आपका फ्यूचर बच्चों आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर मुस्लिम्स बच्चे बैठे हैं तो मैं उनसे बात करना चाहूंगा, इवन नॉन मुस्लिम ये तो समझ सकते हैं इस वक्त कि आप अपना मुस्तकबिल आखिरत आप इस दुनिया में आप ही बनाएंगे। आपके लिए मैं नहीं बनाऊंगा, आपके पेरेंट्स नहीं बनाएंगे, आपके टीचर्स नहीं बनाएंगे। उसी तरह से आपका फ्यूचर बच्चों आप बनाएंगे, ठीक है ना, कोई और नहीं बनाएगा, क्योंकि आपके जिम्मेदार आप ही हैं। हम सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको मदद कर सकते हैं, आपको एनकरेज करके आपको चीजें फराहम कर सकते हैं, लेकिन करना तो बच्चों आपको है, ठीक है। उम्मीद है कि मैं जो कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और आप कोई चीजें नोट भी कर रहे होंगे, अपनी लाइफ कल से चेंज करने की कोशिश कर रहे होंगे आज से इंशाल्लाह, ठीक है। चले, पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, nobody else is going to do it for you. It always seems impossible unless it is done. ये सोचे क्या है ये, it is always seems impossible unless it is done. अगर आप बैठ के सोचें कि भाई कल के दिन आपको एरोप्लेन चलाना है, तो आप बोलेंगे यार एरोप्लेन तो मैं अभी छोटी कार नहीं चला पा रहा हूँ, मैं कैसे एरोप्लेन चलाऊंगा या चलाऊंगी। तो आप उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, तो आपको अभी तो इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन जब आप एरोप्लेन चलाना शुरू करेंगे, आप पायलट बनेंगे, आप बोलेंगे यार ये तो बहुत सिंपल काम था, बोले हम बहुत चीजें सोच रहे थे। जैसे एक छोटा बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, जब लेटा है बच्चा क्या कहता है, बड़ों को देखता है, भाग रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, 2 पैर पे चल रहे हैं, वो बोलता है मैं तो लेटा हुआ हूँ, ये कैसे चल रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं, कैसे बैलेंस कर रहे हैं ये। वो बच्चे को लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन जब बच्चा भी दौड़ने चलने लगता है, बोलता है ये तो बहुत ईजी है, तो रोजमर्रा का काम है, आई डोंट इवन थिंक अबाउट इट, आई कीप वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग। तो इसी तरह से बच्चों, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अनलेस इट इज डन, ठीक है। तो ये जहन में रखें, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, ये जहन में रख लें। आपको हार्ड वर्क करना है, जैसे नासिर खुर्शीद साहब ने भी कहा, सईद साहब ने भी कहा, आपको अपना एक जहन बना के अपने आप को तैयार करना है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप दुनिया के करंट अफेयर से वाकिफ हैं, अपने जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में सिर्फ आप खाली क्वेश्चन आंसर पढ़ के आपको याद करके आपको एग्जाम दे देना नहीं है, उससे आगे भी दुनिया है।
होता है कि बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम से पहले पढ़कर एग्जाम देते हैं, एग्जाम के दूसरे तीसरे दिन या एक हफ्ते के बाद पूछे भूल जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर लिखना होता है। नहीं बच्चों, वो तो एक जरिया है आपको मार्क्स हासिल करके आगे बढ़ने का, लेकिन आपको अपना एजुकेशन से आप अपने आप को बहुत एम्पावर करें। आप एजुकेशन लिमिटेड नहीं रखें, आप बहुत कुछ आप एनालाइज करें चीजों का, आप वाइस बनते जाएं। आपके एजुकेशन का जो है दायरा एक्सपैंड होना चाहिए। कोई एक चीज पूछ रहे हैं तो आप उसके अतराफ के चीजें 360 डिग्री उसके मालूमात होना चाहिए कि व्हाई दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, why should I only write a simple answer, why cannot I write a very comprehensive answer in a very specific simple manner। ये बहुत सारे जो है आप अगर स्टडी सही तौर पे करने लगेंगे एजुकेशन की इंपॉर्टेंस जानकर, तो आप क्वेश्चन टू आंसर जो है वो कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे, आप और आगे सोचने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत काबिल बनाएंगे चीजें। समझ गए आप लोग? so what I'm saying is start where you are, use what you have, do what you can। तो देखें, स्टार्ट वेयर यू आर, आप जो भी हम्बल बैकग्राउंड से हैं, हम्बल फैमिली से हैं, वही हैं। यूज व्हाट यू हैव, व्हाट रिसोर्सेज यू हैव स्टूडेंट, यूज इट। डोंट थिंक दैट आई एम नॉट रिच, आई डोंट हैव कार, आई डोंट हैव फैसिलिटीज, आई डोंट हैव सो मेनी अदर थिंग्स। नो, डोंट थिंक लाइक दैट। सो मेनी big personalities, eminent personalities in this world, they were from all the humble background। बड़े लोग नहीं थे वो लोग, बहुत सारे, आधे से ज्यादा जितने काबिल लोग आपको नामवर लोग नजर आते हैं इस वक्त, उनकी स्टडी करके देखें, दे कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। सो डोंट ब्लेम योर बैकग्राउंड। आपके पेरेंट्स माशाल्लाह जितनी मेहनत करके आपको लाके दे रहे हैं, आप शुक्रगुजार बने, उनके ओबीडियंट बने, उनको खुश करने की कोशिश करें, उनकी उम्मीदों पे आइए बच्चों, ठीक है? सो डू व्हाट यू कैन। आपके बस में जो है बच्चों वो करो, और आपके बस में बहुत कुछ है। जैसे मैं बताया शुरू में, अल्लाह ताला इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, वो अशरफुल मखलूकात हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है? हम उसके वैल्यूज खोज दिए हैं, एजुकेशन के वैल्यूज हम हासिल करेंगे। एजुकेशन के वैल्यूज तो मुस्लिम का विरासत में हमारा एजुकेशन आया है बच्चों, हम समझा करें। दूसरे कम्युनिटीज क्यों आगे बढ़ रहे हैं, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट एंड गोल सेटिंग, ठीक है? राइट। सो अभी देखें, आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, वही बता रहा हूं मैं। इफ यू डिसाइड टू चेंज, दैट बिकम्स योर फेट, राइट? सो चेंज योरसेल्फ, change your thinking completely from today, then you will achieve what you want, inshallah। So now I'll just take you now what you are going to do tomorrow। Do you have any plan? Think about it, okay? next year क्या करेंगे, 10 साल के बाद क्या करेंगे, 5 साल के बाद क्या करेंगे, ये आपके जहन में होना चाहिए। रफ प्लान होना चाहिए, जरूरी नहीं है आपको पूरा परफेक्ट प्लान अभी बना के रखें आप, ठीक है? ये देखें, आप इस तरह से आप चढ़ते जाएंगे, 21, 20, 23, 24 इस तरह से। Now what you can do is, you can choose to be the future of India। How? Leader of India, how? Through UPSC exam, Union Public Service Commission exam। So far I made up your mind on the education, time management, goal setting, personality development, obedience, okay, all these things। Now I'll take you to UPSC exams। So there are 750 districts in India। What happened then? The 750 districts, they work under a system in which people have different ranks or position depending upon on how important they are. Like some are the collectors, some of the chief secretaries, all the top positions, these UPSC candidates who pass IAS, IPS, IFS, they hold that position, okay? ये तो आपकी जैसी क्लासरूम है, it is the same classroom। ये डायरेक्टर ऑफ स्कूल्स है जो यानी यूपीएससी एग्जाम देके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके आके बैठते हैं, तो उनके तहत में बहुत सारे लोग होते हैं। ही विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर, ही हैज दैट नॉलेज, ओके? ये देखिए, एक टीचर है, टीचर का एक रोल है, ही इज प्लेइंग हिज रोल, ही हैज स्टडीड टू सर्टेन लेवल। प्रिंसिपल है, शी हैज स्टडीड लिटिल बेटर लेवल, शी इज अ प्रिंसिपल। एजुकेशन सेक्रेटरी है, एजुकेशन सेक्रेटरी, ही इज अ, he got this highest rank in UPSC exam, so he is education secretary। So there are different levels, see, from students to director of schools to teachers to principal to education secretary। So if you are a teacher, you are teaching to 100 students। If you are a director, you have better area। If you are a education secretary, then you have thousands of lakhs of people under you, lot of institutions, lot of whichever field you are working as a head, like collector for example, you have that administration power in your hand, you can change things, okay? City, country, state, everything, this is the way, okay? Student, teacher, principal, then you come। So what happens, it's a fast track actually। You don't have to spend 20 years to reach to the education secretary। When you complete your UPSC exam, you pass that exam,
you straight away go and sit as education secretary. Imagine. Okay, you pass all the steps, right? Constable is there. He did not study much, so he's a constable. Police inspector, he has studied little bit, that's why he's a police inspector. He's a superintendent of police. Okay, he's a young guy. He comes from a humble background. I think he's from Gujarat. He completed his IPS. He got top position in 2 years study of IPS. He passed UPSC exam. He's sitting at superintendent of police position. Imagine. All of a sudden he got power. He got administration level, like alhamdulillah. Here again, constable to inspector, inspector to deputy superintendent of police, then superintendent of police. It takes 25 years. You can see here how it takes 25 years. Here, you can see 5 to 7 years you are constable, then 5 to 7 years you are deputy inspector, deputy superintendent of police, then you reach after 20-25 years to superintendent of police. So what you can understand here, if you complete this UPSC exam, IPSC, IAF, you can straight away go and sit at the top level without wasting time, right? So good. So what it requires is proper studies. Okay, so you are at the right crossroad. That's why I'm saying you can aim high, you can prepare yourself, you can appear, you can pass, you can acquire that position, inshallah. Okay, so now for school students, what I say here at the moment is you have list of competitive exams for school students. Okay, children, today you are in a cutthroat competition in the world. I tell you why cutthroat. One is better than other is better than other. Okay, these days most of the companies, what they are doing, they are not looking into your mark sheets, they are not looking into your degrees. No, you say you talk, leave that degree, leave your resume, leave everything. What you are, you tell us. When you talk to people in your interview, they understand, oh, this girl and this boy is a very intelligent, he has brain, he is creative, he analytic, all the qualities he has. They don't look at the degrees and all. So that's why I'm saying cutthroat competition. One is better than other. So prepare yourself now. Okay. Mere reading books does not give you sufficient knowledge to face the current scenario of challenges in the present rapid changing world. And world is changing rapidly. Okay. 5 साल पहले जो दुनिया थी आज नहीं है. 1 साल पहले 6 महीने पहले जो दुनिया थी नहीं है. आप हम यहाँ बैठ के 4,500 किलोमीटर से I am talking to you. Why? Zoom. New thing has come up now. People are talking, differently. Instantly I am able to reach you all. You can hear me, you can understand. So हर चीज change हो रही है बच्चों. तो दुनिया change हो रही है. वो change में अगर if you don't adapt yourself to that change, we will be nowhere. I tell you, we will be nowhere. हर चीज आप गौर करके देखें, दुनिया में change हो रही है. Business change हो रहा है, online business हो रहा है, छोटे business बंद हो रहे हैं, छोटे business के लोगों को फायदा नहीं है, बड़े business के लोगों को फायदा हो रहा है. ठीक है, आपके सामने उबर है, पूरे टैक्सीज खत्म हो गए. आपके सामने दूसरे है, जैसे अमेज़न है, सब खत्म हो गए. हाँ, तो कहाँ है दुनिया? आगे बढ़ रही है. हम अगर पेस नहीं कर लेंगे साथ में तो हम भी पीछे रह जाएंगे, याद रखें. ठीक है, तो यही टाइम है बच्चों, आप अपने आप को बनाएं, अपना फ्यूचर बनाएं. ठीक है, राइट. द कॉम्पिटिटिव एग्जाम मोस्टली बेस्ड ऑन द एकेडमिक करिकुलम एंड ब्रिंग आउट द हिडन टैलेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन. ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है बच्चों, आपके हिडन टैलेंट्स निकालेंगे, आपको तैयार कराएंगे. आप में जो एबिलिटी अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बना के जो दिया है ना, हम उसको यूज नहीं करके उसको दबा देते हैं, तो ये उभर के आएगी. ठीक है, तो इसको आप फॉलो करें. मैं आपको और डिटेल दूंगा इसके. देन द मेरिटोरियस चिल्ड्रन विद एक्सेप्शनल टैलेंट्स आर अप्रिशिएटेड विद स्कॉलरशिप्स. बताइए अब आप, जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शनल टैलेंट्स रखते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, मेडल्स मिलते हैं, मेरिट सर्टिफिकेट्स मिलते हैं. दस दे फील एनकरेज एंड कॉन्फिडेंट. देखिए, तालीम की दुनिया आपको बहुत कुछ देगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा उसके लिए केपेबल बनना पड़ेगा. अपने आप को काबिल बना के थोड़ा एक 2-3 लेवल ऊपर ले जाकर, ताकि आप किसी से बात कर पाएं, किसी से समझ पाएं, किसी को कन्विंस कर पाएं. ठीक है ना, वो लेवल पे आप ले जाना पड़ेगा. आप अगर छोटे लेवल पे रहेंगे तो आप वो लाइमलाइट में नहीं आएंगे, आपको कोई मदद नहीं करेगा, आपको स्कॉलरशिप्स नहीं मिलेगी. ठीक है ना, तो अब आप जहन बनाइए बच्चों. ठीक है, प्लीज. लिस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर स्कूल. अगेन मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन बाय NCERT है, कंडक्टेड इन 2 स्टेजेस एट लेवल, स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल. ये अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से आप पता करें, या हमारे जो बशीर साहब हैं, शायद आज नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है. You can go to our office in Paiga Plaza. You can seek the guidance and counseling. Okay, after this session we will give you a feedback form. You fill up your details of
name, your age, your which class you're studying, your contact number, your parents' name, their contact number. We will call you with us. We will guide you how to go through these competitive exams. What are these? How this will benefit you. Okay. So then second number is National Means Come Merit Scholarship Scheme by the Ministry of Human Resource Development. Human Resource Development, Government of India का है. ठीक है, हम आगे बढ़े, देखें दुनिया बहुत अपॉर्चुनिटीज दे रही है हमें, हम पता ही नहीं है. हम तो छोटे से उसमें बैठे हैं कि चले हम 10th पास कर लेंगे, इंटर कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, दैट्स इट. नो बच्चों, आप में भी वही सलाहियत है जो आप अभी देखें, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को देखें आप. ठीक है, और दूसरे जो बड़े बड़े जो इस वक्त एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, उनमें भी वही सलाहियत थी, आप में भी वही सलाहियत है. आप अगर अपने आप को तैयार करके आगे बढ़ेंगे तो आप भी वो लेवल पे जा पाएंगे बच्चों. इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल. ओके, it is possible. I always say impossible word itself is saying that I am possible. Okay, right. So then again third number पे है National Science Olympiads and National Maths Olympiads by HBCSC. ये देख लें आप इसके डिटेल्स. ठीक है, फिर दूसरा नंबर 4th पे है. So there are more than 34 types of competitive tests available. बच्चों, अपने आप को जो है competitive test के ऊपर ले आइए आप. ठीक है, आप डरे नहीं कभी भी. जैसा है ना, कोई चीज पहले डिफिकल्ट मालूम होगी अनलेस यू डू इट. सो टेक इट अप, टेक एनी चैलेंज इन लाइफ एंड प्रिपेयर योरसेल्फ, अपीयर फॉर इट एंड गेट थ्रू. कोई मुश्किल नहीं है इसमें. ठीक है, और रॉकेट साइंस नहीं है ये मिथ है आप लोगों का जहन में बना के रखे हैं कि भाई ये नहीं होगा. हर चीज होगी, बता रहा हूं मैं आपको इंशाल्लाह. अब देखें आप, ये है सीक्रेट ऑफ फास्ट ट्रैक ग्रोथ इन लाइफ. मैं आपको बता रहा हूं जो यूपीएससी एग्जाम है नंबर 1 पे, फिर नंबर 2 पे है एसएससी विच इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन. ठीक है, फिर नंबर 3 पे है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर फर्दर स्टडीज. ठीक है, तो ये आपको ऑलमोस्ट ये 900 to 1200 पोस्ट हैं इसमें यूपीएससी एग्जाम में, जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये बहुत सारे हैं इसमें फैकल्टीज. ठीक है, इसमें 900 to 1200 पोजीशंस है, ईयरली बता रहा हूँ ये, हर साल. फिर एसएससी में जो है ईयरली 20,000 to 25,000 है, जिसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स है, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर्स है, एक्सटर्नल अफेयर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, ऑल दीस थिंग्स आर देयर आर सो मेनी इनटू इट. यू गो एंड फाइंड आउट, यू विल एक्सप्लोर इट, यू गेट मोर डिटेल्स अबाउट इट. ओके, द नंबर 3 पे है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर फर्दर स्टडीज. उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगे, सीएटी, सीएलएटी, नीट, आईआईटी, ये सब मिलेंगे. इसमें 20,000 to 50,000 ओपनिंग्स है इन टॉप इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. तो ये सब मिला के कितने हो रहे हैं? 70-75,000 पोजीशंस है बच्चों हर साल. हम कहाँ हैं? हम गफलत की नींद में हैं, हम स्लो पेस लाइफ में हैं, हम बिल्कुल मुख्तसरन जो है एजुकेशन हासिल करके हम समझ रहे हैं बहुत पढ़ लिए, 90% मार्क्स ले लिए तो हम समझ रहे हैं हम कामयाब हो गए. नहीं बेटा, मार्क्स से नहीं है, ये काबिलियत की दुनिया है ये. ठीक है, कट थ्रोट जो कंपटीशन है, इसमें आप रेडी हो अपने आप को. ठीक है, तो ये जो फास्ट ट्रैक आपको जो मैं अभी बताया हूँ, इसको एक्सप्लोर करें. आप हमारे ऑफिस जाके भी आप गाइडेंस ले सकते हैं. ठीक है, अच्छा अभी देखें आप, इन इंडिया हु एक्चुअली रूल्स द नेशन. अब मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या मिनिस्टर्स, या गवर्नर्स, या चीफ मिनिस्टर्स, आप समझ रहे होंगे ये लोग तो गवर्न कर रहे हैं. दे आर द रूलर्स ऑफ इंडिया, दे आर ऑन द फेस, बट बिहाइंड देम दीज आर द पीपल, लीडर्स एंड रूलर्स ऑफ टुमारो. कौन है? आप लोग हैं. और आप लोग जब आईपीएससी, आईएएस, आईएफएस जब पढ़ेंगे, तो जब आप प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, कोई मिनिस्टर को, आप एडवाइजर बनेंगे. आप उनके, आप जो कहेंगे प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, वो सुनेंगे, क्योंकि वो उतने काबिल नहीं हैं, जो वो एजुकेशन हासिल करके उतने लेवल पे नहीं आए जितना आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बन के आएंगे. ठीक है, वो काबिल हैं, लेकिन उनकी एक अपनी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं और उनके अपने जो अदर टैलेंट्स है, उसकी वजह से वो लीडर बने हैं. लेकिन एडवाइजर्स तो पूरे यूपीएससी के बच्चे हैं. पूरे कहीं भी ले लें, कोई भी दुनिया में ले लें, अब से ले लें, हिस्ट्री में ले लें, जो टॉप लोग होते हैं दुनिया पूरे नेशनल लेवल के, जो यूपीएससी जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो नाम दिया गया है कमीशन का, वो लोग जो बच्चों को तैयार करते हैं, दे आर द पीपल हु आर द एडवाइजर्स टू द गवर्नमेंट. ओके, ये समझ जाएं आप, ये बहुत टॉप लेवल के जो पोजीशंस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो यू आर द लीडर्स एंड रूलर्स ऑफ टुमारो. सो बच्चों, प्रिपेयर योरसेल्फ टुडे. ओके, अपनी अच्छी तैयारी करें, कोई चीज नहीं रोकेगी आपको. ठीक है, समझें कि रीजंस फॉर लैगिंग बिहाइंड, हम क्यों पीछे हट रहे हैं, उसके क्या रीजन है.
हम नहीं समझ पा रहे हैं इसीलिए, हम रिसोर्सेज नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं इसीलिए, टाइम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं इसीलिए। तो these are the reasons like we lagging us behind all these things. Okay, why do we have low presence in governance? क्यों है? मुसलमानों में या माइनॉरिटीज में तो अवेयरनेस ही नहीं है, इसलिए हम पीछे हैं। कितने बच्चे हैं? लास्ट ईयर 940 में से हमारे 42 बच्चे आए हैं मुस्लिम कम्युनिटी के। सही नहीं है वो, ठीक है। तो हम इसीलिए आप लोगों को तैयार कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, समझें, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वर्क टुवर्ड्स इट, इंपॉर्टेंट है ये, समझ गए। ये देखिए आप, यंग लेडी है, शी इज IAS ऑफिसर, हाँ, अब she passed and she's sitting as a young 26 year old lady, माशाल्लाह। वो अपनी जिंदगी पूरी नहीं लगाई ये लेवल पे आने के लिए, 60 साल 65 साल की नहीं बनी। क्यों बनी? More than 90% of policy formulations and decision making is done by the bureaucrats. Who are the bureaucrats? Bureaucrats are the candidates who pass these UPSC exams. ठीक है, तो आप भी बैठ सकते हैं, आप अपने आप को सोच के देखें, आप भी बैठ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आपको तैयारी करनी है। तैयारी कितनी करनी है? आपको पास टाइम है, आप हाई स्कूल में है, आपको भी बहुत टाइम है, आप अपने स्टेप बाय स्टेप आप वो लेवल तक आ सकते हैं। बहुत इजी है आपके लिए बच्चों, ठीक है। ये देखें, यंग गाय, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पास IFS, ही इज होल्डिंग दैट पोजीशन, सी इज कॉन्फिडेंस, समझे ना। छोड़, कम उम्र में आप आके टॉप पोजीशन पे बैठते हैं। ये पोजीशन, ये जगह है जहाँ पे UPSC के जो पास जो बच्चे हैं, जो बैठ के एडवाइजर्स के तौर पे काम करते हैं, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के लिए, होम एंड जितने हैं बड़े बड़े पोजीशंस पे, ये देखिए आप, यू कैन सिट इन हर प्लेस। Young lady, you also like this. After 5 years, you become like this. You go and sit there, mashallah, rule the nation, advise the prime minister, governor, ठीक है। So अभी आपको बताता हूँ कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये है, देखिए आप, जो आ रहे हैं अभी। इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है हमारे सैयद अकबरुद्दीन साहब, ही इज फ्रॉम हैदराबाद, ही इज रिप्रेजेंटिंग यूनाइटेड नेशंस, माशाल्लाह, ही हैज डन हिज IFS। औसाफ सईद साहब हैं, इंडियन एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया, मिस्टर औसाफ सईद, ही हैज डन IFS, माशाल्लाह। ये यंग लड़की है ज़ैनब सईद फ्रॉम वेस्ट बंगाल, शी ऑब्टेन्ड हाईएस्ट मार्क्स इन इंडिया, 220 आउट ऑफ 275, माशाल्लाह। कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, छोटी फैमिलीज हैं, कोई बड़ी चीजें नहीं है, फिक्र नहीं करें आप, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा ये, ठीक है। ये सब लोग हैं जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं, इनकी स्टडी करें आप, इनकी लाइफ की, ठीक है। और आपको एक रास्ता मिलेगा, आपको डायरेक्शन मिलेगा इनसे पढ़ने से, कि इन लोगों के क्या तरीक़ेकार थे, कैसे बैकग्राउंड से आके ये लोग इतने लेवल पे कैसा पढ़े, ठीक है। अबू कलाम, APJ अबू कलाम साहब को तो सबको पता है कितने हम्बल बैकग्राउंड से, क्या लेवल पे पहुंचे वो, माशाल्लाह। ही इज द सेकंड मोस्ट, आई थिंक मोस्ट लाइक पर्सन इन इंडिया आफ्टर अम्बेडकर साहब, ठीक है। तो ये देखें आप लोग, ये सब है, इसी टाइप के लोग हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े IFS IPS ऑफिसर्स हैं, और जो मेहनत करके पर्सनालिटीज आए हैं आगे। तो अब आप देखें आपको क्या करना है। सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए आपको क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, या गौर करके देखें आप। ग्रेजुएशन कोई भी एक फैकल्टी का, BA BSc BCom BBA BSc, ये सब, ठीक है ना। कोई भी चीज करेंगे, इसके बाद आप UPSC के लिए अपीयर हो पाएंगे, इससे पहले नहीं अपीयर हो पाएंगे। तो आपको बेर मिनिमम क्या करना है, आपको ग्रेजुएट बनना है। लेकिन ग्रेजुएशन करने के दौरान में अब से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं UPSC एग्जाम्स के लिए। बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। रीडिंग बुक्स इम्प्रूव्स योर नॉलेज, मेक्स यू एजुकेटेड एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन। नॉलेज इज ऑलवेज पावर, समझ गए ना आप। स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, बी अवेयर ऑफ करंट अफेयर्स, मैं जैसे शुरू में कहा आपसे। रीड जनरल स्टडीज, मैनुअल्स, ठीक है। अपने आप को आगे, थिंकिंग प्रोसेस आपका आगे होना चाहिए, लिमिटेड नहीं होना चाहिए। नोट्स बनाएं, ठीक है। स्पीक ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज इज ए लिंक लैंग्वेज। आप कोई भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, नॉलेज हासिल कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश सपोज टू बी अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, लिंक लैंग्वेज, which most people are communicating in official matters. That's why English is important. Right side पे देखें, make today the day to learn something new. हर दिन कुछ नया सीखते रहिए, ठीक है। आप उससे क्या होगा, आप 1-2 महीने में आपको 60 चीजें नए सीख लेंगे, हर दिन एक नई चीज सीखेंगे, ठीक है। राइट, देखिए आप जो है अभी हाई स्कूल में है, NCERT बुक्स जो है फ्रॉम 6 to 12। देखिए आपका जो इस वक्त हाई स्कूल में बच्चे हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ अभी स्टूडेंट्स, 6 to 12 आपका बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है ये। आप इसी में से पूरे UPSC एग्जाम के मोस्ट क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। तो आप लोग लकी है ना, अभी हम आपको बहुत ही
राइट टाइम पे आपको हम एजुकेट कर रहे हैं कि भाई आप यूपीएससी एग्जाम क्यों दे सकते हो, आपको सहूलत है उसकी। 6 to 12 बुक्स आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते जाइए आप, इसी में से आएगा, ठीक है, मेनली, राइट। तो अब अपना ग्रुप बना लें, ग्रुप में पढ़ें, जिस तरह से हैं आप कर सकते हैं। और आप अपने जो ग्रुप हैं 1-2-4 का, उसमें आप वीकली मिलें, वंस मंथली मिलें, डिस्कस करते रहें, एक्सचेंज करते रहें चीजें, ठीक है, लर्न फ्रॉम ईच अदर, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग, ओके। उससे क्या होता है, मोटिवेशन रहेगा आप ग्रुप में पढ़ने से, ठीक है। और you can make your life beautiful as the scene is there, mashallah. Life is basically beautiful, we make it complicated, okay. So try to keep things very simple, nothing to worry. The only way to make your dream come true is to wake up. Why I'm saying wake up? आज के दिन से पहले हो सकता आपके जहन में कुछ और चल रहा था, जहन कहीं और काम कर रहा था, आपको नॉलेज नहीं थी, इंपॉर्टेंस नहीं मालूम थी। आज के दिन के बाद से आपको वेकअप होना है, अपनी लाइफ सही बनाना है। कल से आप मुझसे वादा करें, इंशाल्लाह आप अपनी जिंदगी सही बनाएंगे, सिस्टमेटिक करेंगे, समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, और अच्छी स्टडी करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। टाइम सही इस्तेमाल करेंगे, टाइम जो वेस्टर्स है उसको आपकी लाइफ से एलिमिनेट कर देंगे, निकाल देंगे। ओबीडियंट बन जाएंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, टीचर्स के ओबीडियंट बनेंगे, उनकी संगे। देखिए बच्चों, जो माँ बाप की खिदमत कर कर, टीचर्स की खिदमत करके, इज्जत करके जो आगे बढ़ेंगे, उनको अल्लाह ताला गैब से एजुकेट दे देता है, समझ। तो हमेशा जहन में रखें, अपने माँ बाप, अपने टीचर्स, अपने गार्डियंस, अपने बड़ों के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर उतरे हैं। जिंदगी में, आखिरत में, दोनों में कामयाबी है बच्चों, उसके अलावा हमारे पास कामयाबी नहीं मिल सकती, ठीक है, राइट। और चीज बताता हूँ आपको, जो मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शन जो है होल्डिंग बैक यूथ फ्रॉम टेकिंग अप यूपीएससी एग्जाम। आप बच्चों को क्या जहन में आता कि ये बहुत टफ है। अभी देखें, आप पढ़ते जाइए 1 से 8 तक, इट इज अ वेरी टफ एग्जाम, नो, वेरी लॉन्ग प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। Generally Muslims are not selected, format of exam is complicated, no guarantee of selection, only children of rich people are selected, remuneration is very low in government services। अब मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। नंबर 1 ये है, इट इज नॉट एट ऑल टफ एग्जाम। मैं आपको इससे पहले कहा कि भाई जो चीज करने से पहले आपको टफ लगती है, करने के बाद इजी लगती है। आप प्रिपेयर करें अपने आप को। वेरी लॉन्ग प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, नॉट एट ऑल। ऐसे भी बच्चे हैं बच्चों जो बगैर फॉर्मल इंस्टीट्यूट जाकर 2 साल 1 साल प्रिपरेशन नहीं किए। आमतौर पे इसके लिए 1 साल 2 साल के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, नॉर्मली एज एडवाइजेबल। लेकिन बाज़ बच्चे ऐसे हैं जो पहले से जहन बना के पढ़ रहे थे, तो वो डायरेक्ट अपीयर हुए, पास हो गए। मैं आपको उसके एग्जांपल्स भी दूंगा। सो दैट मींस वेरी लॉन्ग प्रिपरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, योर माइंडसेट, राइट माइंडसेट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जनरली मुस्लिम्स आर नॉट सेलेक्टेड, ऐसा नहीं है, बहुत सारे मुस्लिम सेलेक्ट हो रहे हैं। आप देखिए, आप जब काबिल होते हैं, काबिलियत को कोई रोक नहीं सकता, याद रखें। आपकी नॉलेज कोई ले नहीं सकता, याद रखें, ठीक है। यस सर। फॉर्मेट ऑफ एग्जाम इज कॉम्प्लिकेटेड, लोग कहते हैं, सिंपल फॉर्मेट है। मैं आपको बताया एनसीईआरटी के 6 to 12 जो आपका फाउंडेशन है वो बेस रहेगा, उसके बाद से आप आएंगे। लेकिन आपका जो एक ट्रेडिशनल जो अप्रोच है एजुकेशन हासिल करने का, जो क्वेश्चन पढ़ लिए आंसर दे दिए, ऐसा नहीं, वो लेवल पे फिर आप नहीं कर सकते। आपको उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, रेफरेंसेस से समझना पड़ेगा चीजें, ठीक है। तो नो गारंटी फॉर सिलेक्शन, ऐसा भी नहीं है हर आदमी सेलेक्ट होता अगर काबिलियत है। ओनली चिल्ड्रन ऑफ रिच पीपल आर सेलेक्टेड, नहीं। मैं तो आपसे कहा कि 940 बच्चे जो पास हुए लास्ट टाइम, या हर साल जो पास होते हैं, उसमें से आधे से ज्यादा बैकवर्ड क्लास के, मिडिल क्लास के, बिल्कुल हम्बल घरानों के लोग होते हैं। बस तो मेड सर्वेंट के बच्चे हैं, घर में काम करने वाली के बाद ऑटो ड्राइवर्स के बच्चे पास हुए। आप समझ सकते हैं, इट्स नॉट ओनली फॉर रिच पीपल। रेम्यूनरेशन इज वेरी लो इन गवर्नमेंट, मतलब जो तनख्वाहें हैं कम है गवर्नमेंट में, ऐसा नहीं है। ये तो टॉप पोजीशंस हैं, ये टॉप पोजीशंस के लिए आपको मैं समझता हूँ 5-6 लाख तो आपकी मंथली सैलरी शुरू होती है। आप जाके देख लें, आप उसमें सैलरी के अलावा यू विल बी ट्रीटेड एज ए क्लास ऑफिसर, टॉप फैसिलिटीज आप देख लें, तो आपकी अपनी लाइफ और आखिरत दोनों बन जाएगी। यू विल बी एटलीस्ट इन ए पोजीशन टू सर्व ह्यूमैनिटी, ठीक है, वो पोजीशन पे आएंगे। अच्छा ये देखें आप, ये जम्मू एंड कश्मीर की है, मैंने एक जगह से लिया था, देन आई थॉट आई कैन जस्ट शेयर इट विद यू ऑल। नादिया बेग, 23-year-old गर्ल फ्रॉम फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कपवारा, जम्मू कश्मीर, द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर है, लड़की जो है, ठीक है। ये देखें, ये सब हम्बल बैकग्राउंड से, छोटे छोटे विलेजेस से भी हैं बास लोग। दे कंप्लीटेड देयर प्रेस्टिजियस सिविल सर्विसेज एग्जाम,
ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग देखिए, जिसको मालूम है, जो इम्पोर्टेंस जानता है इसकी, वो प्रिपेयर हो रहा है, वो कामयाब हो रहा है। समझ गए आप? राइट। अब ये थोड़े से चीजें हैं, मैं आपको मोटिवेशन के लिए ला रहा था कि एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। इससे क्या समझ रहे हैं आप? आपका एजुकेशन खुद आपकी जिंदगी है, ठीक है। फिर देखें आप, ऊपर ही देख लें, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, कीप मेकिंग मिस्टेक, नथिंग हैपेंस, कीप ट्राइंग। आज आप कोई नई तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसमें कामयाब नहीं होंगे, जहन में नहीं बैठेगा, कुछ और तरीका अपनाएं, नया ग्रुप अपनाएं, आप चेंज होते रहेंगे अपने आप को, बट नेवर गिव अप। ओके, देन नीचे देखें येलो पे, एजुकेशन इज नॉलेज and knowledge is power, power is respect, and respect is happiness. So education is leading you through all the important aspects of life. huh? Education is knowledge, power, respect, happiness. So ये सब आपको मिल जाएंगे, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, जिंदगी में कुछ नहीं करें, आपको पढ़ाई से बहुत कुछ मिल जाएगा। And always believe in yourself and all that you are, जो भी आपको रिसोर्सेस हैं, something inside you that is greater than any obstacle। याद रखें, बड़े बड़े ऑब्स्टिकल आएंगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन आपका जो फर्म डिटर्मिनेशन है बच्चों, ये डिटर्मिनेशन आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा, कामयाब बनाएगा, ठीक है। तो पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। शुरू में मैं कहा आपको खुद करना होगा, कोई और नहीं करेगा, ठीक है। तो मेक अप योर माइंड, इंशाल्लाह यू कैन डू दैट। अभी आपको थोड़े से मैं टिप्स दे रहा हूँ, टिप्स एंड सोर्सेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ये तो मैं आपको बता दिया हूँ, रीडिंग न्यूज़पेपर वगैरह, डिसाइड व्हेन यू वांट टू प्लान टू टेक अप योर यूपीएससी, कब आप करना चाहेंगे। जाहिर है आप तो अभी हाई स्कूल में हैं, आपको 3 साल ये पढ़ने हैं, 11th 12th एंड देन ग्रेजुएशन, आपको तो 5 6 7 का टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ, कलेक्ट डिटेल्स ऑफ द सिलेबस, डिवाइड द सिलेबस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये बेसिकली थोड़ा एडवांस लेवल पे है, लेकिन आप होगा ये कि 6 to 12 जो एनसीईआरटी के बुक्स हैं, आप अपना बेसिकली जो भी स्टैंडर्ड में, जो भी क्लास में, तो उसको अगर आप कंसंट्रेशन से सही समझकर पढ़ लें, सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए नहीं पढ़ें, नॉलेज हासिल करने के लिए पढ़ें, दैट विल बिकम बेस फॉर यू फॉर यूपीएससी एग्जाम, ठीक है। मेक ए हैबिट ऑफ पुटिंग इन टाइम फॉर स्टडी ऑन ए डेली और वीकली बेसिस। देखिए नासिर खुर्शीद साहब ने भी कहा कि डेली आप आधा 1 घंटा आप रीडिंग करें, उससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, नॉलेज बढ़ेगी आपकी और इंटरेस्ट बढ़ेगा नॉलेज के साथ साथ, ठीक है। कलेक्ट बुक्स एंड स्टडी मटेरियल, ये कर लें। वॉच इंटरव्यूज एंड वीडियोस ऑफ आईएएस, आईपीएस, आईएफएस टॉपर्स एंड देयर एडवाइसेस ऑन यूट्यूब। ये इतना अच्छे टाइम पे हैं हम, आप क्लिक करें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन जब आप गूगल पे जाएंगे, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट गेट कैरिड अवे विद अननेसेसरी स्टफ ऑन कंप्यूटर एंड गूगल, ठीक है। आमतौर पे होता है, वी गेट डिस्ट्रैक्टेड, डोंट डू दैट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मेक योर गोल, follow your goal, ठीक है। on YouTube and Google you will get all the material required for free, ठीक है। all the previous UPSC exam papers are on Google, it is very important। पहले नहीं था, अगर आप डालेंगे यूपीएससी एग्जाम के पूरे क्वेश्चन पेपर आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इसका पैटर्न क्या है, क्या पूछा जा रहा है, मैं क्या लेवल पे हूँ, मुझे क्या तैयारी करना है इसकी, समझिए आप। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ फाइनल वर्ड, I'll just finish it now in 5 minutes. Whatever you decide now and follow up in your life consistently determines your future. It is in your mind, bachcho, in your hand. Okay? Do it. Keep taking notes. Write down, please. Don't believe that you are in this state because of our fate. नहीं हो सकता है बाज बच्चे अमीर घरानों के यहाँ जो बैठे हैं, बाज मिडिल क्लास के हैं, बाज उनके पेरेंट्स स्ट्रगल करके पैसे लाके दे रहे हैं, ठीक है। बट फेट चेंजेस बाय हार्ड वर्क एंड प्रेयर्स, ओके। अल्लाह प्रॉमिसेस दैट। आप ये नहीं सोचे कि ये स्टेट में मैं कैसे करूंगी, कैसे होगा मेरा, नहीं, अल्लाह हर चीज करेगा। दुआ करते रहें, नमाजें पढ़ें, ठीक है। हम तो अल्लाह के बहुत करीब हैं, 5 वक्त हम सजदे में जाते हैं, दुआ करते हैं, छोटी छोटी चीज हम अल्लाह से मांगते हैं, ठीक है, पॉसिबल है, ओके। Napoleon Hill was famous writer and said whatever a man's mind can conceive and believe it can achieve। अभी मैं जो आपको बताया हूँ, अगर आप कंसीव करते हैं उसको, आइडिया को बिलीव करते हैं, then you can achieve it, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग बनाया, इसलिए बोला लक़द खलक़ना इंसान फी अहसनिल तक़वीम, इंसान को अल्लाह बेहतरीन फॉर्म में बनाया, तो हमको क्यों डरना है, हमें हर चीज है हमारे ब्रेन में, ठीक है। सो एट दिस स्टेज बच्चों, आई वुड लाइक यू टू राइट डाउन ऑन अ पेपर इमीडिएटली आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ, पहले जहन में डाल लें, ठीक है। हाउ मच डू यू वांट टू अर्न पर मंथ, अर्न पर मंथ इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ योर स्टेटस, ठीक है, वो आप डाल लें। हाउ मच यूजफुल यू वांट टू बिकम फॉर योरसेल्फ, योर पेरेंट्स,
योर कम्युनिटी एंड फॉर नेशन। ये हमारे लिए, हम जिम्मेदार हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। हम अपनी ज़िंदगी नहीं देखना है हमें सिर्फ, हम अपने साथ वालों को भी देखना है। हम ये देखेंगे हम किसका क्या फ़ायदा कर सकते हैं, हमारी ज़ात से किसको क्या फ़ायदा पहुंच सकता है। ठीक है, ये जहन में रखें हमेशा, आप कामयाब होंगे। ठीक है, दूसरों के लिए करें, अल्लाह आपके लिए करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया है। थैंक यू एंड मैनेजमेंट ऑफ योर इंस्टीट्यूट very much for organizing this and attending this seminar and webinar, and you have been really a wonderful audience, mashallah. You were quiet all the while and you listened to me. I hope I could give you a simple form of education, motivation, the way to achieve your goals in life in akhirah inshallah. Okay, I wish you all good luck बच्चों। कोई आपको क्वेश्चंस हैं आप बशीर साहब से कांटेक्ट करें, ये कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं। मोहम्मद सईदुद्दीन साहब, ही इज वेरी एक्टिव मेंबर, ही इज अ फाउंडर फॉर दिस CSA Academy, माशाल्लाह, ही इज वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व। यू कैन कांटेक्ट हिम, ओके, ही विल रिस्पॉन्ड टू यू ऑल। एंड हम आपकी गाइडेंस के लिए है, इंस्टीट्यूशंस के गाइडेंस के लिए हैं, टीचर्स के गाइडेंस के लिए हम लोग, पेरेंट्स अगर बात करना चाहते हैं तो वी आर देयर। जो भी हमारी हम्बल अप्रोच है, हमारा बैकग्राउंड है, हमारी कोशिश है, हम कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी के बच्चे समझें, प्रिपेयर हों, आगे बढ़ें, अपना फायदा करें, अपनी कम्युनिटी का, अपने नेशन का। हमें काम करना है, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, समझ जाएं आप। ओके, एनीवे, थैंक यू, विश यू ऑल गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। नाउ द फाइनल थिंग इज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। One of the very important characteristics of a student is to question. Let the students now ask the questions. Okay, so we welcome your questions. Be interactive. और आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो भी है आप, हम हिम्मत अफजाई करते हैं, आप पूछें, हम आपका जवाब देंगे इंशाल्लाह। और आप बिल्कुल कंफर्टेबल रह के हमसे सवालात करते रहिए आप। जज़ाकल्लाह खैर। Thank you very much. Jazakallah Khadir Sahab. MashaAllah, it was a wonderful session. I hope children have absorbed all the information given to them. I request Madam Tahsin Sakina to conduct the question answer session, Madam. Assalamu alaikum, sir. Salam. The students, it was really, we should thank the team especially to give us awareness on civil services mainly, and alhamdulillah it was in depth, sir, and very nicely planned for the student age group, I should say. It was very clear with the PPT through the flow chart and all, and alhamdulillah I hope our students have understood that. And inshallah, those who are attending now, that is the first step. They are already motivated towards it. So alhamdulillah, may Allah bless them and guide them to achieve these positions. For the question answer section, any student or parent or teacher, anybody has any question, you can write in the chat box. So I'll read out and sir can answer it. It will better themselves. That will be very good. If they tell their name and speak about them, it will be Yes, great. sir. If the student themselves ask, that will be wonderful actually. You want them to unmute and ask the question? Yes, yes. Yeah, they can unmute their mics. Students can and they unmute directly- yourself if you want. First, raise the hand so that at a time, 3-4 will not be there. So we'll see that and we'll. जी सैयद रियान, पूछें बेटा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप जो फर्स्ट शुरू में जो समझाए थे ना सर, वो मुझे जी। समझने नहीं आया। कौन सा बेटा शुरू में क्या समझाया था, बताइए, किस ताल्लुक से? एजुकेशन के ताल्लुक से या टाइम के ताल्लुक से या गोल सेटिंग? टाइम के ताल्लुक से सर। जी जी बेटा, मैं आपको फिर बताता हूँ। टाइम के ताल्लुक से ये है कि आपके पास जो टाइम है बेटा, आप वो सही यूटिलाइज करना है उसको। उसमें क्या करना है आपको, जो आपके इम्पोर्टेंट चीजें हैं उस दिन के, वो इम्पोर्टेंट चीजें आप पेपर पे लिख लेना है कि मुझे ये होमवर्क करना है, ये चीजें हैं, ये टाइम पे खेलना है, ये टाइम पे करना है। पूरा आप सेट करें अपना पूरे दिन का प्रोग्राम, ठीक है ना? और वो प्रोग्राम जब सेट करेंगे तभी आपका दिन सही यूटिलाइज होगा। वरना क्या होगा, जैसे दिन जाएगा आप चलते रहेंगे तो वो दिन बेकार हो जाएगा फिर आपका। तो आप अपना शेड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं उस दिन का। आप स्टूडेंट्स हैं, जाहिर है बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है आपके, सिर्फ पढ़ना है आपको या होमवर्क करना है या कुछ खेलना है, तो आप अपना लिमिटेड एक शेड्यूल बना लें, एक टाइम टेबल बना लें उस दिन का। हर दिन का टाइम टेबल बना लें आप अपना। और जैसे मैं कह रहा था कि टाइम के लिए लोग जो है दावतें आती हैं, कहीं और जा रहे हैं, सोशलाइजिंग है, सोशल गैदरिंग है, उसमें 2-4 घंटे रोजाना वेस्ट कर देते हैं बेटा, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सही नहीं है वो।
तो हम ये चाह रहे थे कि आप जान लें कि जो आपके टाइम वेस्ट करने वाली चीजें हैं अपनी लाइफ से निकाल दें आप, जैसे मोबाइल फोन्स हैं, चैटिंग है, गैजेट्स हैं, दोस्त हैं, ऐसी चीजें सब हटा दें। वो मैं कह रहा था। ठीक है बेटा? बेटा रियान, इसमें एक चीज मैं जरा ऐड करूंगा। सबसे पहले जी। आपको पता ये है, सुन रहे रियान, सुन रहे आप? यस सर। सबसे पहले समझिए कि ये टाइम क्या चीज है। बेटा अल्लाह ताला ने हमको कई नेमतें अता, जैसा आपको जो है अच्छे माँ बाप दिए, अच्छा स्कूल दिया, अच्छा जो ये सब चीज नेमतों में सबसे इंपॉर्टेंट जो नेमत है वो टाइम है। क्या टाइम हम कहीं से ले सकते हैं? अगर हमारे पास टाइम खत्म हो गया तो टाइम वापस ला सकते हैं अपन? टाइम नो किसी नो सर। से बारो कर सकते हैं? नहीं सर। तो एक बार टाइम अगर निकल गया तो खत्म, हमारा जो है जो असासा था वो खत्म हो गया। टाइम के बारे में Yes. ये जिस तरह का जो है कोई आदमी अगर बर्फ बेच रहा, तो बर्फ जो जितना जब तक रहेगा वो जब तक ठंडा है जब तक बेच लेना चाहिए। अगर वो अगर इंतजार करे तो क्या होता, बर्फ पूरा पानी बन जाता। इस तरह जो है टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके बारे में जिसकी जो इतनी वैल्यू है कि इसके जो इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। 1 मिनट जो चला गया उसको अगर कोई बोला कि मैं करोड़ रुपए देता हूँ वापस लाओ, तो कोई नहीं ला सकता। ऐसी जो अनमोल चीज आपके पास है उसका इस्तेमाल कैसा करना है वो आपको खदीर साहब ने बताया कि आपका एक एक मिनट आपको इंतजार, आपको इसको जो प्लान करना चाहिए और उसको हर आने वाले मिनट के लिए प्लान करना चाहिए और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ये चीज जो है खदीर साहब ने आपको समझाया। अस्सलाम वालेकुम सर। यस जी, वालेकुम अस्सलाम अनस अली जी। सर, व्हाट इज द एज लिमिट फॉर यूपीएस एग्जाम्स? एज बेटा 21 ईयर्स एज शुड बी देयर। 21 ईयर्स होना चाहिए आप, और ग्रेजुएट होना चाहिए आप यूपीएससी एग्जाम के लिए। मिनिमम 21 ईयर्स ऑफ एज। ग्रेजुएट की आपकी एज जो है 21 होनी चाहिए, एंड इट इज यू कैन अपीयर अप टू 32 इयर्स। 32 इयर्स तक आप अपीयर हो सकते हैं, एंड 6 टाइम्स यू कैन अपीयर। देयर आर 6 चांसेस आर देयर इन दैट, बट यू ट्राई टू पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन द यंगेस्ट एज, दैट विल बी एडवांटेज फॉर यू। You prepare from now, you have, like for example, you have now 5 years from now, so you can prepare during this 5 years, so that when you complete the graduation you can directly go for UPSC exam. There are so many examples. एक महाराष्ट्र का है, उसका नाम है अंसार शेख। एक लड़का था जिसने जो है एक गरीब खानदान से था, उसके बाप ऑटो ड्राइवर थे, उसकी माँ जो है मेड सर्वेंट थी। वो बच्चा जो है जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म करा, अपीयर हो गया और पास हो गया, एंड ही बिकेम यंगेस्ट IAS ऑफिसर ऑफ इंडिया, अंसार शेख फ्रॉम महाराष्ट्र। और एक लड़का है जो सफीन अहमद बोल के, फ्रॉम गुजरात, ही बिकेम यंगेस्ट IPS ऑफिसर फ्रॉम इंडिया। अभी आप लोग देखे होंगे कि एक लड़का जो है शोएब आफ्ताब, इसने जो है नीट का एग्जाम पास किया, हिस्ट्री में सबसे पहली मरतबा 720/720 हासिल किया उसने। तो दीज आर ऑल गुड एग्जाम्पल्स के अपने बच्चे पास होते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए आए तो वो बोल सकते हैं आप, वी कैन जस्ट आंसर देम आल्सो। कौन से लैंग्वेज में प्रिलिमिनरी एग्जाम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं यूपीएससी में, जरा आप स्टूडेंट्स को बताइए। कौन से सब्जेक्ट्स पे जो है वो लोग ज्यादा फोकस करें, थोड़ा ये जरा उनके ऊपर रोशनी डालिए स्टूडेंट्स को। इसमें जो है ना ऑल लैंग्वेजेस, ऑल इंडियन लैंग्वेजेस जो शेड्यूल में है, सारे लैंग्वेज अवेलेबल है। 17 लैंग्वेजेस आर देयर व्हिच दे कैन अपीयर। उर्दू इज आल्सो इंक्लूडेड इन दैट। उर्दू, संस्कृत, तेलुगु सब में एग्जाम दे सकते हैं लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंग्लिश में अगर हो तो बेहतर रहेगा। इंग्लिश में क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए बहुत लिंक लैंग्वेज है, और इंटरव्यूज वगैरह भी जो है इसमें भी इंग्लिश के लिए बहुत सहूलत रहती है। तो दे शुड प्रिपेयर देमसेल्व्स इन इंग्लिश, दैट विल बी द प्रेफरेबल लैंग्वेज है, क्योंकि इट्स ए लिंक लैंग्वेज एंड दे विल बी बेटर इन द वर्ल्ड। अदरवाइज ऑल इंडियन लैंग्वेजेस आर अप्रूव्ड हियर फॉर द यूपीएससी एग्जाम। और कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए हमारे सईद भाई, जरा अभी से वो बच्चों को जो है खास तौर पर, तो ताकि जो उसमें ज्यादा टाइम जो है इन्वेस्ट कर सके वो लोग, तो ये थोड़ा आप रोशनी डालिए। सब्जेक्ट जो है ना सब जो ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे वही सब्जेक्ट पे करने का रहता है। देयर इज नथिंग, कोई स्पेशल सब्जेक्ट्स नहीं है। इन लोग जो रेगुलर जो पढ़ते सब्जेक्ट्स वही सब्जेक्ट्स में रहता, और उसके बाद जो ऑप्शन सेलेक्ट करते वो भी जो है जो इनको कंफर्टेबल रहेगा वो सिलेक्शन रहेगा। 7 सब्जेक्ट्स रहते हैं एक्चुअली, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है जो पढ़ना है वो जनरल नॉलेज और जनरल उसके अवेयरनेस के बारे में। उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना इनको अभी से बेहतर है, प्रैक्टिस करना, दैट विल बी वेरी गुड। आजकल जो है ऐसे इंस्टीट्यूट आ गए जो है इन लोगों को ऑनलाइन कोचिंग करे, जो क्लास 8 से शुरू कर सकते हैं और ग्रेजुएशन तक इनको पूरी IAS की ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं, इफ स्टूडेंट्स आर रेडी दे कैन जॉइन दोज इंस्टीट्यूट्स एंड दे कैन लर्न फ्रॉम नाउ। तो सब्जेक्ट्स का कोई प्रॉब्लम।
All the जो rest- स्टूडेंट एवरेज लेवल पे है मालूम है सईद भाई, उन लोगों कैसा कवर अप करके जो है आप लोगों से, जैसे हमने जो बशीरबाग पे एकेडमी है, अप्रोच करके गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। तो थोड़ा इसके पर भी थोड़ा उन लोगों को थोड़ा एक आध पॉइंट आप गाइड करिए, ताकि क्योंकि बस स्टूडेंट जो 50% है 40% है तो वो लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि भाई हमारी याददाश्त कम है, हमारी जो है मालूम है हम पढ़ रहे हैं भूल जा रहे हैं, या बहरहाल वॉट एवर एजुकेशन में उनके जो सब्जेक्ट की वाइज डिफिकल्टीज आते हैं तो वो लोग थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर भी आप थोड़ा एक पॉइंट बोलिए ताकि वो लोग जो है अभी से स्टार्टअप ले सके। एक्चुअली खुदरत भाई, इसमें जो है मार्क्स का कोई लिमिट नहीं है। इसमें 50% 60% की बात नहीं है, असल जो वो नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि पैशन कितना है आदमी जो है ना। आदमी, आपने देखा होगा, आपने समीर अहमद सिद्दीकी साहब का जो मैं पहले क्लिप डाला उसमें क्या बताया वो, कि आदमी को पैशन होना चाहिए, कि वो जो है इतनी जिद्दत से चाहना है कि मैं इसमें पास होऊंगा। 50% रहो या 60% रहो, देयर इज नो लिमिट फॉर दैट। इट इज इंपॉर्टेंट इज यू शुड नॉट फॉरगेट योर ऑब्जेक्टिव, कि मेरे को यूपीएससी करना है और मेरे को सक्सीड होना है। ये अगर डिटर्मिनेशन है तो ही विल पास व्हाटएवर इट इज, ही विल लर्न ऑल दोस थिंग्स। आदमी अगर कोई दिल्ली जाने का इरादा कर लिया, अगर किसी ने कहा कि मैं दिल्ली जाना है, तो उसको कोई ना कोई रास्ता बताएगा, उसको खुद रास्ता मिलेगा, और कोई ना उसको कई ऐसे गाइड मिलेंगे जो उसको रास्ता बताएंगे। अगर कोई आदमी तैयारी नहीं है, उसको एयरपोर्ट सिर्फ जा रहा है और उसको नहीं मालूम है कि एयरपोर्ट के बाद मैं कहाँ जाना हूँ, तो वो कहीं नहीं जा सकता। तो डेस्टिनेशन अगर क्लियर है तो ही विल गेट द गाइडेंस। जनरली क्या होता है, 10th क्लास में आप पूछिए कि बच्चे आपको क्या करना है, तो बोलते कि नहीं हम 10th के पास होने के बाद कौन सी कॉलेज में जाएंगे सोचेंगे, इंटर के बाद सोचेंगे कि इंटर के बाद क्या करना है। तो ये ऐसा नहीं होता। यू शुड प्लान फ्रॉम राइट नाउ कि कौन सा ग्रेजुएशन आपको करना है, कौन सी कॉलेज से करना है, कितने मार्क्स आपको हासिल करना है। अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनेशन यू विल प्रिपेयर योरसेल्फ, अकॉर्डिंग टू द टास्क यू विल प्रिपेयर योरसेल्फ। बहुत एक्सीलेंट इंफॉर्मेशन, मतलब आई थिंक स्टूडेंट फ्रॉम मालूम है लेट्स कोर्स आल्सो मालूम है कैन थिंक अबाउट दिस वन, ऐसा कि डिमोटिवेट ना हो समझे। ओके, आप जैसा बताए मालूम है फोकस और टारगेट एक रहा तो इंशाल्लाह अचीव कर सकते हैं। बहुत खूब, बहुत उम्दा बात कही आपने समझे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है ना, अभी जो बच्चे जो स्कूल के हैं, इन लोगों के लिए हमारी एडवाइस ये है कि ऑल द मैनेजमेंट के लिए भी है कि मैडम इनको जो है ना नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम के लिए तैयारी करवाइए। ऑल स्टूडेंट्स कैन अपीयर, एंड ये नेशनल टैलेंट सर्च जो एग्जाम है ये यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जाम है, समझिए आप, ये मिनी यूपीएससी है। जो इसमें पास होगा उसको जो है काफी स्कॉलरशिप्स और काफी जो है मेडल्स वगैरह मिलते हैं, और अल्टीमेटली दिस प्रिपरेशन विल हेल्प देम इन पासिंग द यूपीएससी एग्जाम। तो जितने बच्चे जो स्कूल में है दे शुड ट्राई फॉर ये नेशनल टैलेंट सर्च, और ओलंपियाड्स में अपीयर होना चाहिए, दे शुड पार्टिसिपेट इन दिस एग्जाम्स। दिस इज व्हाट वी आर एनकरेजिंग, and those students who after passing intermediate they can take up the other exams, जैसा नीट है और जेई है, वो एग्जाम्स करके they can go for the higher end courses में जा सकते हैं। इंजीनियरिंग के, लॉ के कोर्सेस है, क्लैट एग्जाम है जिसमें जो है करने से लॉ में जा सकता है बच्चा। तो इसी तरह के जो नीट एग्जाम है मेडिसिन के लिए, एमबीबीएस के लिए है, उसी तरह जेई के एग्जाम से आईआईटी वगैरह का एडमिशन मिलता। तो देर आर सम एग्जाम बिफोर इंटरमीडिएट, देर आर सम एग्जाम आफ्टर इंटरमीडिएट, and after graduation you have these exams like UPSC and SSC and state public service commission hai. So these are the exams after graduation. So if they prepare for the they should go into competition first. They should know what competition they can do now. Every student from class 2 to class 12 there are exams for her class, her level ke liye there are exams, and they should try to participate, and the management should encourage them to participate in these competitive exams. I hope it answers the question. सईद साहब, मैं एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ। या प्लीज जी, मैं सबसे पहले तो सब बच्चों को मुबारकबाद दूंगा कि वो आज यहाँ पर आए हैं एंड दे हैव डिसाइडेड टू बिल्ड देयर कैरियर। ये सबसे बड़ी बात है। इसके बाद जो है दूसरा मरहला ये है कि जैसा कि मैं अपनी बात कर रहा था, एवरीबडी शुड कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन। अभी जो है जैसा कि सईद साहब बार बार कह रहे हैं, खदीर साहब इतनी मोटिवेशनल बातें बताए, तो उसके बाद आप लोगों को ये मोटिवेशन होना चाहिए कि आप सवालात करें, ताकि देखें ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक तरीका है। ये अगर आप जब तक ये है कि कोई और बोले, कोई और सवाल करे, उसको मैं सुनूंगा, ये नहीं। आप खुद, जैसा कि रियान, मैं मुबारकबाद दूंगा बच्चे को जो इनिशिएट किया एंड ही स्टार्टेड आस्किंग व्हाटएवर क्वेश्चन। आप ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन माइनर है या मेजर है या अहम है गैर अहम है, ये नहीं है। आपके जहन में अगर बात आ रही है तो आप प्लीज आपका ये माइक ऑन कीजिए
कैमरा ऑन कीजिए, बी कॉन्फिडेंट, यहाँ से आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना है। तो ये जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ये सोचना है आपको कि मैं खुद आगे बढ़कर कोशिश करना है। तो आप आगे बढ़कर सवाल कीजिए। तो क्योंकि एक्सपर्ट्स खदीर साहब जैसी शख्सियत, सईद साहब जैसी शख्सियत की बहुत कम लोगों को मिलती है, तो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल सेटिस्फाइड जवाब आपको देंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप कंफर्ट जोन से निकलें। आप बिल्कुल ये नहीं कि भाई मैं बस खामोश बैठा रहूंगा, ऐसे ही दूर से देखूंगा, नहीं, आप पार्टिसिपेट में आपका पार्टिसिपेशन हो। और जैसा कि मैं बता रहा था कि आज आप हमको सुन रहे हैं, कल आप अगर मेहनत करेंगे तो कल आप टेलीविजन में आपका इंटरव्यू आएगा, आपको हम देखेंगे। तो यानी ये लेवल पे आपको आगे बढ़ना है। जैसा कि खुदरा साहब ने बताया कि बच्चों के कुछ परसेंटेज कम होते हैं, मैं कई ऐसे एग्जांपल्स आपको दूंगा। सईद साहब जानते हैं, ये मुनव्वर जो है हमारे आईएफ में जो है, ही स्कोर्ड 45% मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड, और जब इंटरमीडिएट फर्स्ट सेकंड में ही उन्होंने जब वो ज्वाइन किए तो वो बोलते हैं कि मुझे लोग बोलते थे कि तुम क्या आगे कैरियर बनाएंगे। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ही स्कोर्ड 90 and 95%। तो यानी कभी भी वक्त नहीं ये होता, आप उसको इस्तेमाल करें। तो जहां से आप शुरुआत करेंगे वहां से आपकी कामयाबी शुरू होती है। तो वो बच्चा बाद में जो है बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग किया। तो ये ऐसी कई मिसालें हमारे पास हैं कि अगर आप कहीं कम हैं तो ये सोचकर बैठना नहीं है कि हमको अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये जो बात है लीडर्स आर मेड, लीडर्स आर बॉर्न, ये सही नहीं है। इक्का दुक्का एक दो चार हो सकते हैं, लेकिन लीडर्स आर ऑलवेज मेड। वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, तो आपको अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। Alhamdulillah, few students have already participated in Olympiads and all. There's Mustaba also, though, and they got good marks, and they are all self-motivated students who have joined today. Alhamdulillah, we have sent to all the groups, but these are the students whom Allah has guided, I think. Very good. They are here with us. So, Alhamdulillah, may Allah bless them and guide them to achieve whatever they want to become in future. And पर्सनल सेक्शंस में सर आपका तो प्रेजेंटेशन बहुत ही क्लियर था, तो इट इज देयर एंड इंशाल्लाह विल लुक इनटू द मैटर्स ऑफ टेकिंग द चिल्ड्रन इनटू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं, जो अभी भी नोटिफिकेशंस आते हैं हम लोग देते रहते हैं, तो वी पास इट ऑन एंड वी सी एंड वी आल्सो कंडक्ट क्लासेस फॉर देम इन स्कूल, एट स्कूल लेवल आल्सो। तो इंशाल्लाह देखेंगे, और आप जो गाइडेंस दिए हैं इंशाल्लाह विल वर्क ऑन दैट आल्सो वंस द स्कूल्स रीओपन फिजिकली, आई फील। अभी तो एक सिचुएशन से गुजर रहे हैं हम लोग, and they'll also be collecting the number and names, those who are interested, inshallah will go. As sir said, primary level like 6th class, 7th class to 10th class, you have to write NTAC and Olympiad exams, okay? So that guidance inshallah we'll also take help from sir and their academy, and inshallah we will guide you and train you. If you are interested, definitely inshallah we'll do that at school level. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sir. Walaikum assalam. I am Navya Nurin Fatima from Excellence Diwali School. सर बात चीज को कोशिश करने के बावजूद भी हासिल नहीं होती, उसके लिए क्या करें? हाँ, वेरी गुड। देखिए बेटा, मैं अपने प्रेजेंटेशन में आपको बताया था कि अगर आप फेलियर हैं, ठीक है, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। अगर आप फेल हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसमें देखेंगे फेल होने में आपकी क्या कमी बाकी है, उस कमी को पूरा करें और ट्राई करते रहें, आप कामयाब होंगे, ठीक है ना। और सही डायरेक्शन में आप अपनी मेहनत करें, क्योंकि आप फेल हो रहे हैं, दूसरे बच्चे पास हो रहे हैं। दूसरे जब पास हो रहे हैं तो दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू स्टडी इन ए प्रॉपर मैनर, राइट थिंग्स, एंड दे आर पासिंग। सो आप उसको कोशिश करें कि आप में क्या कमी बाकी है उसको कवर करें बेटा, वो सही हो जाएगा इंशाल्लाह। Nabia dear, there is a good example of spider, right? स्पाइडर क्या करती, जाला बनाती, टूटते रहता, फिर ऊपर जाती, फिर बनाती, कोशिश करते ही रहती है जब तक कि उसका जाला पूरा ना हो। ओके, सो यू हैव टू ट्राई ऑलवेज, और फेलियर से ही हम सक्सेस पे जाते हैं। सब लोग डायरेक्टली सक्सेस की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। फेलियर होके जब हम हमारे खामियों से सीखते हैं ना, हम जो वीकनेस है हमारी उससे जब सीखते हैं तो और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। ओके, बिकॉज यू नो व्हाट इज ए फेलियर देयर। फेल होना क्या होता है पता जब रहता है इंसान को, तो वो और मेहनत करता है और सक्सेस की तरफ जाता है। सो नेवर थिंक फेल हो रहे, नहीं हो रहा, ऐसा नहीं रहता। डेफिनेटली इंशाल्लाह अल्लाह हमको गाइड करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।
Sir, I would request Hamid sir, because our chairman sir, due to some unavoidable meeting, he couldn't attend. So I request Hamid sir if we can. Vote of thanks आप दे देंगे. First of all, sir, before sir starts, I think as a school management person, I would really thank every one of you. खास करके हमारे प्रेसिडेंट सर हैं CSA के जनाब सईदुद्दीन साहब, वक्त निकाल के आप लोग सब इतना जो ऑर्गेनाइज करे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. ये मैसेज जो रहेगा सर, ये यहाँ तक नहीं रहेगा, ये इंशाल्लाह तीनों स्कूल के पेरेंट्स तक जरूर पहुंचेगा. So we'll be sending it to them, and if we can get the recording of it, it would be fine, because it will be easy for us to send the important points. Otherwise, also you can prepare for us a small presentation. Definitely उर्दू में अगर रहा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि पेरेंट्स ज्यादातर उर्दू जानते हैं. तो वैसा हमारा मकसद रीच द कम्युनिटी है. तो इंशाल्लाह जैसा भी रीच होना है उसके रास्ते हम अपनाते हैं. जो इसके पहले भी हम प्रोग्राम्स कर चुके हैं, कोविड अवेयरनेस का कर चुके थे. तो हैदराबाद सिटी में किए थे हम लोग पूरा. वाज द मॉडरेटर फॉर दैट फॉर स्कूल्स एंड डॉक्टर्स अरेंज इट. तो अवेयरनेस के लिए खासकर उनको उर्दू में अगर हम करके थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भेज दें तो अच्छा रहेगा. दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू सर. और आई रियली थैंक जनाब अब्दुल कदीर साहब. बहुत ही डेप्थ में आपका ये था प्रेजेंटेशन था, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन 9th और 10th के बच्चे ज्यादा यहाँ नहीं थे, 6th 7th के ज्यादा नजर आ रहे थे. तो 9th 10th के बच्चों का नहीं है. इंशाल्लाह I'll pass the message to them also. And also thank जनाब नासिर खुर्शीद साहब जो प्रेजेंट है, और जनाब मिर्जा कुदरत नवाज बेग साहब भी हैं. तो सभी डिग्निटरीज जो हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह आप सबको इसका अजर दे और रिवॉर्ड करे, और सबको सेहतमंद रखें. पहले तो आई ऑलवेज ब्लेस एवरीवन विद हेल्थ फर्स्ट, एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू ऑल. Our pleasure, man. Our pleasure. जावेद अहमद खान इलाहाबाद से ज्वाइन करे, अब्दुल खयूम साहब जो है जिद्दा से ज्वाइन करे. माशाल्लाह, I thank all of them also to participating in this. Thank you everybody. Thank you. Assalamu alaikum.